Welcome in the Yashita classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के चैप्टर से जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, सो वॉच टिल एंड. एंड आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि आपको आगे के आने वाली अपडेट्स मिल सकें एंड नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पे आ सकें. ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगना है. सो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें एंड बेल आइकन को दबाएं. Now we should start that. First question is one of the most important question, that what is circular flow of income. अगर हमने ये चैप्टर पढ़ा है circular flow of income तो हमें पता होना चाहिए circular flow of income क्या है. So the answer is circular flow of income. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो फ्लो होता है, एक साइकिल होता है जनरेशन ऑफ इनकम का इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म. I am explaining you in Hindi that firstly the household sector provides the factor services to the firms in the form of land, labor, capital and enterprise. In return of that, the firms make the factor payment to the household sector, and then again the household sector spends the money on the purchase of goods and services which is being produced by the firm. That is called circular flow of income. Quite a very important question for board for 1 marks. So now we are discussing what are next question, what are the phases of circular flow of income. Circular flow of income कितने तरीके से होता है. So there are, I have taught you in the preceding video. आपको वो देखनी चाहिए videos क्योंकि वो बहुत ही important हैं and वो generally आती हैं examination में. So the 3 phases are there, that is generation phase, distribution phase and disposition phase. Generation phase में प्रोडक्शन सेक्टर जो कि फर्म होते हैं वो जनरेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को. डिस्ट्रीब्यूशन में वो फैक्टर पेमेंट देते हैं, मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का वो पेमेंट देते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को. एंड डिस्पोजिशन फेज में जो हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट मिला होता है वो खर्च कर देते हैं. ओके. Now the next question is, what is the role of household sector in circular flow of income? So household sector का क्या रोल होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो household sector होता है वो फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करता है एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं उनका कंज्यूमर भी होता है. सो यू विल राइट हाउसहोल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स एंड स्पेंड द एंटायर मनी ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म. Hope it's clear. Now the next one of the important question, very important question, what is stock variable? I have already taught you in the preceding video that stock variable वो variable होता है जिस चीज़ की हम बात कर रहे हो on the spot, हम अभी का देख रहे हो, on the spot का देख रहे हो, future की बात ना कर रहे हो. So stock variable refers to the variable which is measured at a particular point of time. Particularly हम बात करेंगे कि अगर इस कुएं में पानी भरा है तो इस समय भरा है, पूरे साल का नहीं देखेंगे कि हमारा कितना पानी भरा रहता है. So particular point of time is a special word and an important word for stock variable. Okay. Now the next question is define flow variable. Flow variable वो variable होता है जिसमें कि हम पूरे period of time की बात करते हैं, साल भर की बात करते हैं, किसी चीज़ को पूरी ले लेते हैं. Okay. So flow variable refers to the variable measured over a period of time. Important word, period of time, very important. Now the next question is what is real flow? It can be also asked in examination that what is physical flow. So रियल फ्लो वी शुड डिस्कस दैट रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज. अगर रियल नाम लिखा है तो इसमें मनी का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. सो रियल फ्लो में क्या होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म्स को और जब उसके बदले में फर्म्स अपना प्रोडक्शन कर लेता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करता है फर्म वो प्रोवाइड कर देता है हाउस होल्ड सेक्टर को. सो लेट अस रीड. Real flow refers to the flow of factor services from the household to the firms and corresponding flow of उसके बदले में goods and services देता है firm household को. Clear? Now one of the most important question, what is money flow? आखिर money flow क्या होता है जिसका other name होता है nominal flow. So money flow refers to the flow of factor payment. फैक्टर पेमेंट का यहाँ पे फ्लो होगा फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड. फैक्टर पेमेंट मनी के ही फॉर्म में होगा, कोई हम इसको गुड्स एंड सर्विसेज के तो फॉर्म में दे नहीं रहे हैं. सो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम मनी पड़ा है. सो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो फैक्टर पेमेंट फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म. जो हाउस होल्ड कुछ
कुछ भी सामान खरीदेगा तो वो पैसे से ही खरीदेगा, वो पैसा खर्च करेगा जो कि मनी के फॉर्म में होगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, very important question from this chapter. Distinguish between the stock and flow variable. So now meaning, we will firstly you have to write the basis because the board deducts marks for not writing the basis. So the first basis is meaning क्या होती है? So again that point, it is that variable measured at a particular point of time. Which variable? stock variable वो variable होता है जो कि particular point of time में measure होता है। now flow variable वो variable होगा जो period of time में measure होगा। clear? so you have to remember, in stock we talk about a particular point of time, but in flow we talk about period of time। ठीक, अब हम देखते हैं टाइम डायमेंशन। इसमें कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि इसमें हम ऑन की बात करते हैं, तुरंत की बात करते हैं जो हो रहा है, बट इसमें हमारा टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि हम पूरे पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं। क्लियर? सो आपको याद रखना है, इसमें नहीं होता है एंड इसमें होता है क्योंकि इसमें पीरियड ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ऑन द स्पॉट की बात हो रही है। ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो कि चेंज होता रहेगा। Now we will see the example. So for stock variable money flow, money supply, तो मनी सप्लाई वो मनी होती है जो कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास होती है खर्च करने के लिए, इन सर्कुलेशन, वो चलती रहती है मनी। सो दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई, नेशनल वेल्थ। एंड देन फॉर फ्लो द एग्जाम्पल इज नेशनल इनकम, क्योंकि पूरे हम अगर कंट्री की हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो वो हम पूरे साल की निकालते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर फ्लो वेरिएबल इज द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018, पूरे साल का कितना है। ओके, so now I have discussed the important questions of circular flow of income. So watch this video and it's being a quite important for you. Thank you very much for watching this video.